Okay, hello everyone. Good morning. So in the last session, we have discussed about non-functional. Today also we are continuing with the same topic. What is non-functional testing? So basically we are discussing quality attribute. Okay, in the last session I have completed JMeter. So JMeter is one of the very popular performance testing tool. Even through JMeter you can do functional testing, API testing, right? So basic demo we have completed, like how exactly JMeter tool we can follow for performance testing. The point is some different parameters we measure, right, during performance. And we have already covered. There are a lot of different types available for under performance testing, like what is load, what is stress, what is data volume, endurance, and the spike testing. Today it is time to understand some remaining non-functional testing types. Again, guys, as I mentioned previously, non-functional testing always required specialized team. It is never conducted by independent testing team. Do remember that point. Those team which has certain special skill, those team member can perform non-functional testing type. In general, what we do in real time, we do functional testing. But still, we need to understand what are the different types, because these types are also important. And these types we can generally follow at every level of the development cycle or testing cycle. So now today I will be starting with next topic, what is recovery testing. So this is again a type of non-functional, but what does recovery means? Okay, where exactly it comes into the picture? We need to understand that part. So it's very simple. Somewhere what happens suddenly, your applications may change its state from normal state to abnormal state, right? So there is a possibility, suppose currently your application working fine, that's the normal state. But suddenly because of some network issue, because of some hardware compatibility, whatever the problem will be, because of that application change its state from normal to abnormal. So whenever it get failed, abnormal state in technical word, we can call it as failware, right? So if your software get failed, then it is also important to check that from that abnormal state, how the software will recover. Okay, that is called recovery. Recovery means it's all about if any state it got stuck, it got failed, how it will recover again to the normal state. And guys, there are a lot of examples again. Somewhere suddenly you are downloading any file and suddenly network connection get interrupted. So the point at which you stuck, right? Your file stop the downloading. Once the network connection again connected, it should start from that point only. So that is what abnormal state to again we are moving to the normal state. So there are many examples you can try, right? Somewhere this happens, right? Connectivity issue. Somewhere you have may notice during the call also it happens. Because of the network connectivity, we are not able to hear some other person voice. But whenever network connectivity you will be getting properly, you guys are able to again communicate properly. So recovery, it's all about at any sudden problem, your software must be recovered. So somewhere to just to conduct recovery testing, we can test all the data, right? Entire data set. So somewhere if something backup, yes, we can call it as something backup, right? So see, it is a reliability testing and testing how well system recover from any problem like crashes or hardware failure or sudden problem, right? So with the help of some backup and recovery procedure, application can go from abnormal to normal state. So that backup program, that recovery procedures, we can validate during recovery test. So sudden problem may occur, and because of that, suppose your data get lost. So we should have certain backup, right? From the backup, again, we can reuse that data, we can upload that data. So that is what recovery testing. So with the help of backup, with the help of recovery procedure, we can test that how application can go from abnormal state to normal state. Here it's again simple example I have mentioned. Example, when an application receiving data from a network, unplug the connection cable. And after some time you can plug the cable again, and then you can analyze the application ability to continuous receiving data from the point at which network connection was terminated. Same issue. You can start downloading, suddenly network lost, immediately the file process gets stopped. But once the network will again, connected, okay, it gets started, immediately the file will continue the whole process. And that is what recovery testing. तो जनरली रिकवरी टेस्टिंग में आपका मेन काम रहेगा कि अगर कोई सडन इशू होता है तो वॉट एवर बैकअप इज देयर, वॉट एवर रिकवरी प्रोसीजर, सम स्टेप्स यूल बी गेटिंग, बेस्ड ऑन दैट
आप एप्लीकेशन के रिकवरी को टेस्ट करोगे कि इज इट रिकवर और नॉट, राइट? एंड देन इट कम्स अंडर नॉन फंक्शनल. Along with the recovery testing, what other types will be learning? Guys, now there are two more types, which is very important. Configuration and compatibility. Like UI usability, in configuration compatibility also, there is a thin layer of difference. So what does configuration means? Software configuration means hardware and software requirement. So for every software development, we need certain hardware. We need certain software requirement. So whenever you test the application for a given expected configuration, which is defined by the customer, that's called configuration testing. It's very simple. जब कोई भी कस्टमर का कोई रिक्वायरमेंट होता है कि चलो फाइन माय सॉफ्टवेयर शुड वर्क ऑन XYZ ऑपरेटिंग सिस्टम, लेट्स से दिस इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम. तो जब आप वो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए टेस्ट करते हो, स्पेसिफिक साइज के साथ टेस्ट करोगे कि जैसे एग्जांपल दिस सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड 20 MB और लेट्स से 20 GB, वॉट एवर साइज इट इज, जो भी आपका मेमोरी स्पेस आपको रिक्वायर्ड है, राइट? जब उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट करोगे, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग. So it's very simple process of checking operation of the software application with its all various type of hardware. So guys, somewhere application needs multiple, the component for communication purpose. So जब आप वो configuration test करोगे along with the every component, that is called configuration testing. So in general, application design and develop to work particular configuration, correct? To work for particular configuration. So configuration testing is done to assess that application behavior and performance on the range of hardware and even software configuration for which it is designed. So there is a possibility software बस work होगा Android के लिए, but इसका मतलब ये भी important है कि user might have a different version of Android operating system. So we need to test that whether same software application it work okay fine with different versions of Android operating system. So it is called somewhere hardware compatibility. Do remember, it is somewhere called hardware compatibility. Because आप यहाँ पे क्या करोगे, सॉफ्टवेयर को मल्टीपल एनवायरनमेंट के साथ जो भी कॉन्फ़िगर है, जो भी डिफाइन है, डिफाइन एनवायरनमेंट बट उसके डिफरेंट वर्जन के साथ जब आप टेस्ट करते हो, दैट इज अगेन कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग, और वी कैन जस्ट कॉल इट एज हार्डवेयर compatibility. So this testing is done to check whether system can work on a different configure machine. मतलब software with hardware. Purpose of configuration testing is determine whether the program operates properly when the hardware software is configured in the required manner. तो guys आप simple short में answer दे सकते हो कि every system designed with specific configuration, and whenever we test the application for a same configuration, right, that is called configuration test. So जैसे example I would like to show you certain requirement. देखो, if I open Google, okay, and if I search for Jenkins, so in the future classes we'll be installing Jenkins, right, on a machine. But सबसे पहले हमारा task होगा कि whenever you want to install, you need to check this hardware software requirement for the Jenkins. Without this, you will not able to proceed with the installation process. So let's see what are the hardware software requirement. अब आप देख सकते हो, अगर आपके पास एक simple minimum hardware requirement is 256 MB RAM, 1 GB drive space you should have. Even recommended configuration for small team. अगर small team के साथ काम होगा तो 4 GB of RAM, 50 GB of drive space. Even you can see there are different requirements available. जैसे web browser compatibility. Let's see this. What is the web browser compatibility for Jenkins? So Jenkins is defined for what? See, these are the different versions and the browser it is supported. अब मुझे बताओ कि अगर आपके पास ये रिक्वायरमेंट है कि Jenkins should work for Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge and Apple Safari, right? And even version N-1 to latest patch. मतलब ये सारे वर्जन्स पे, ओल्डर वर्जन्स पे भी काम करेगा, राइट? अब मुझे बताओ इसको टेस्ट कैसे करोगे? You are testing the same application for a defined platform ना? This is what you are doing. You are doing configuration test. आपको ये पॉइंट क्लियर है? बिकॉज देखो इस वजह से आपको रिक्वायरमेंट्स मिलेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म रिक्वायरमेंट्स आर देयर. अगर आप वेब ब्राउजर की बात करोगे तो देखो जेनकिन इन सारे ब्राउजर्स पे काम करेगा. इवन यू कैन चेक जावा रिक्वायरमेंट.
If I click on Java, you can see Jenkins supported on these Java platform. And this is how you need to start writing your script and start writing your test cases. तो जब कोई भी सॉफ्टवेयर को आप स्पेसिफिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ टेस्ट करते हो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो होता है कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग. जैसे जेनकिन ये मल्टीपल वर्जन पे काम करेगा, राइट? तो आपको ये टेस्ट करना है कि सेम जेनकिन इज वर्किंग ऑन जावा 11, जावा 17 और जावा 21. दिस इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड. ओके, so for every software application, there are certain requirements defined by the customer. And based on that, when we test the application, that is called configuration testing. और ये सेम कॉन्सेप्ट को बोला जाता है हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी, जहाँ पे आप एप्लीकेशन को मल्टीपल वर्जन ऑफ ब्राउजर, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आप टेस्ट करोगे. तो गाइज, फॉर एप्लीकेशन टू रन ऑन विंडोज बेस्ड पीसी, लेट्स से एक होम इक्विपमेंट है अपना, राइट? तो कितने सारे सिंपल दैट होम पीसी शुड हैव मैन्युफैक्चरड कैन बी डिफरेंट, लाइक कॉम्पैक्ट, डेल, आईबीएम, एचपी, राइट? कंपोनेंट्स भी अलग हो सकते हैं, जैसे डिस्क ड्राइव होता है, वीडियो, साउंड, मॉडेम, राइट? इवन मेमोरी, डिवाइस ड्राइवर. तो कनेक्टिविटी विद दिस, दैट सिस्टम जब आप असेंबल करोगे, तो आफ्टर असेंबलिंग software will be definitely work, software should work on that configuration, then it comes under configuration test. तो गिवन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेस्ट करोगे तो वो कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेस्ट करोगे. जैसे एग्जांपल, एक ही सॉफ्टवेयर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना चाहिए, मल्टीपल ब्राउजर पे काम करना चाहिए, राइट? तो इट कम्स अंडर कंपैटिबिलिटी. सो इन अवर एग्जांपल आल्सो इट इज डिफाइंड ना, ब्राउजर कंपैटिबिलिटी. व्हाट इज द वर्ड ऑफ दैट कंपैटिबिलिटी मींस? कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है सपोर्टेड ऑन डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट. तो दैट एनवायरनमेंट कुड बी एनीथिंग. वो ब्राउजर कंपैटिबिलिटी हो सकता है. ये जो एग्जांपल है, दिस इज फॉर व्हाट, हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी, राइट? तो कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग, हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी, compatibility. And let me tell you, configuration testing, it is also referred as hardware compatibility. ओके, कि जहाँ पे आप मल्टीपल एप्लीकेशन के मल्टीपल जो कंपोनेंट्स है, जो भी रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग जब आप टेस्ट करते हो, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग, एंड विच इज इन टर्म्स ऑफ कंपैटिबिलिटी कॉल्ड हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी फॉर द सॉफ्टवेयर. बट अब कंपैटिबिलिटी मतलब क्या? See, we need to make sure that as per the given requirement, whether your application is working for that particular software application or for that particular given, configuration. मतलब compatibility में आप different system, different browser, different operating system, network different, okay, और let's say versions of a different network, यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट करोगे. इसमें 4 टाइप्स है, ठीक है? जनरली कंपैटिबिलिटी आप कैसे टेस्ट कर सकते हो कि देयर इज अ ओएस कंपैटिबिलिटी, ब्राउजर कंपैटिबिलिटी, थर्ड इज हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी which is also referred as configuration, and fourth you can test with network compatibility. जैसे एग्जांपल गाइस, सॉफ्टवेयर शुड वर्क ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे एग्जांपल सेलेनियम का रिक्वायरमेंट है. सेलेनियम वर्क्स ऑन 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म, विंडोज मशीन, Selenium works on Mac and Selenium works on Linux. तो इसका मतलब क्या है? जब आप Selenium को टेस्ट करते हो कि Selenium should work on all these 3 platform, तो बेसिकली वी आर डूइंग ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबिलिटी. अभी का रिक्वायरमेंट जो आपने देखा, जेनकिंस, जेनकिन शुड वर्क ऑन डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर, है ना? क्रोम, सफारी, देन इट शुड वर्क ऑन एज, इट शुड वर्क ऑन मोजिला फायरफॉक्स. तो ये क्या है? दिस इज एग्जांपल ऑफ ब्राउजर कंपैटिबिलिटी. हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी मतलब यू आर डूइंग कॉन्फ़िगरेशन, जो गिवन रिक्वायरमेंट है उस गिवन रिक्वायरमेंट पे सॉफ्टवेयर के हर एक कंपोनेंट को टेस्ट करोगे, दैट इज यू आर डूइंग कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग. नेटवर्क का मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल, लाइक वी कैन टॉक अबाउट मोबाइल, राइट? तो मोबाइल में 2G नेटवर्क, 3G नेटवर्क, 4G, nowadays 5G. Whenever you test that, whether application your software is working with all this kind of supportable network, that's called what? Network compatibility. तो कॉन्फ़िगरेशन कंपैटिबिलिटी में 3 लेयर का डिफरेंस है. कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग का मतलब होता है व्हाट वी डू फॉर अ गिवन कस्टमर एक्सपेक्टेड प्लेटफॉर्म व्हेन वी टेस्ट द एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट. एंड जब आप मल्टीपल एनवायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को टेस्ट करोगे, अगेन एज पर द रिक्वायरमेंट ओनली,
बट दैट इज डिफरेंट, लाइक कुछ वेरिएशंस हो गए। वेरिएशंस मतलब डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट वर्जन के ब्राउजर, डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट टाइप एंड डिफरेंट वर्जन ऑल्सो इन द केस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो आता है कंपैटिबिलिटी का पार्ट। तो वन मोर टाइम, व्हाट इज कंपैटिबिलिटी इन ISTQB? इट इज कॉल्ड पोर्टेबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पोर्टेबिलिटी। तो देखो, टेस्टिंग वेदर द सिस्टम इज कंपैटिबल विद अदर सिस्टम विद इट शुड कम्युनिकेट। तो अगेन ये बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ही होगा। सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग मीन्स चेकिंग दैट योर सॉफ्टवेयर इंटरैक्ट विद एंड शेयर इंफॉर्मेशन करेक्टली विद अदर सॉफ्टवेयर। तो जितने भी अदर कंपोनेंट है, जितने भी अदर सॉफ्टवेयर हैं, कम्युनिकेशन इज प्रॉपर और नॉट, दैट वी कैन टेस्ट। The purpose of is to evaluate how well software perform in different or particular hardware, software, operating system, browser and network environment. अब यहाँ पे दो टाइप्स है, फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी एंड द बैकवर्ड। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में एक ही सिंपल एग्जाम और वी कैन से डिफरेंस है कि जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर को लेटेस्ट वर्जन के अकॉर्डिंग टेस्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी। कोई भी सॉफ्टवेयर को आप ओल्डर वर्जन के साथ टेस्ट करोगे, दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। जैसे एग्जांपल, हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि कोई XYZ एप्लीकेशन, इट शुड वर्क ऑन एंड्रॉइड। ठीक है, अब एंड्रॉइड में तो मल्टीपल वर्जन है। लेट्स स्टार्ट विथ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, राइट? तो वी हैव दिस वर्जन। सपोज वी आर टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विथ ऑल द ओल्डर वर्जन। तो ये आपने क्या किया है? दिस इज यू आर डूइंग बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। अगर आपको टेस्ट करना है क्योंकि वॉट एवर सॉफ्टवेयर इट इज, इट शुड वर्क विथ वॉट लेटेस्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। लेट्स से कि मैंने टेस्ट किया है कि 14 के साथ, 15 के साथ, इज इट वर्किंग? तो ये क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी और फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इसमें दोनों भी टाइप में एक ही डिफरेंस है कि जब आप ओल्डर सॉफ्टवेयर के वर्जन के साथ एप्लीकेशन को टेस्ट करोगे, दैट बिकम्स बैकवर्ड। एंड व्हेन यू टेस्ट द एप्लीकेशन विथ its functionality with the latest version of the software, then it is called forward compatibility. I hope it is clear. ये point clear है? What is forward and what is backward? And see, the simple difference is here. Testing the application of software with old and previous version, that is backward. Testing software application in new or upcoming version, that is actually called forward compatibility. इसमें जो टाइप्स है, तीन स्पेशल टाइप्स है। जैसे हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी विच इज कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग, ब्राउजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, बट देर आर सम अदर मोर लाइक नेटवर्क कंपैटिबिलिटी यू कैन टेस्ट। मॉडल कंपैटिबिलिटी गाइस, डिवाइस के अलग अलग वर्जन होते हैं, अलग अलग मॉडल्स भी होते हैं, तो आप मॉडल में भी कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर सकते हो, राइट? तो देर आर मेनी टाइप्स, बट दीज थ्री आर वेरी स्पेशल: ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी। And this concept in ISTQB called portability testing. तो ISTQB में आपको ये compatibility word नहीं मिलेगा. It is all about portability. Is this point clear? What is recovery testing? What is configuration and compatibility? One more time. Configuration means given requirement के according if you test the software application with its all component that include hardware, software, everything, that is called configuration testing. Nothing but hardware compatibility. But when you test the software application for a different versions of the software, or like let's say different versions with operating system, in that case it can simple called compatibility test. इसमें भी दो टाइप हमने लर्न किए, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अगर आप एप्लीकेशन को न्यू वर्जन के साथ टेस्ट करोगे, दैट इज फॉरवर्ड। एप्लीकेशन को ओल्डर वर्जन के साथ टेस्ट करोगे, दैट इज ऑलवेज बैकवर्ड। And this is how here we have completed configuration and compatibility testing. What is next? Guys, in terms of non-functional, installation and uninstallation both are important. जैसे non-functional testing हम production environment के according test करेंगे. Means whenever software application का functionality complete है, then we can go for non-functional, जहाँ पे specialized team काम करेगा. बट इस पूरे प्रोसेस में एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हाउ वेल योर सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल ऑन अ कस्टमर प्लेटफॉर्म। अभी तक सॉफ्टवेयर QA प्लेटफॉर्म में था, तो इट इज वर्किंग फाइन बिकॉज वी हैव मेड द सेटअप फॉर इंस्टॉलेशन वॉट एवर इट इज नेसेसरी।
बट ये भी आपका काम है कि जब आप सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करते हो, इन दिस डिप्लॉयमेंट फेज सॉफ्टवेयर शुड बी प्रॉपरली वर्क ओके ऑन दैट कस्टमर सपोर्टेड प्लेटफॉर्म। तो कस्टमर के पास जो प्लेटफॉर्म है दैट शुड बी मैच। एंड ये मैच कैसे होगा? तो आपको टेस्ट करना है कि गिवन सॉफ्टवेयर इज प्रॉपरली इंस्टॉल इवन अनइंस्टॉल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। तो इंस्टॉलेशन टेस्टिंग इज अगेन नॉन फंक्शनल। अब बताओ, सिंपल सी बात है, कोई भी सॉफ्टवेयर आपने अब तक तो इंस्टॉल किया होगा, राइट? तो टेल मी, व्हाट आर द की फैक्टर दैट यू फोकस ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर? अगर मेरे पास कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, मुझे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, तो जनरल व्यू क्या होता है वाइल इंस्टॉलेशन? सी वेरी फर्स्ट साइज, है ना? सॉफ्टवेयर का साइज कितना है, दैट साइज शुड बी अवेलेबल इन माय कंप्यूटर मशीन, तब जाके मैं सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाऊंगी। तो ओके, साइज इज द फर्स्ट पैरामीटर दैट वी कैन कॉल इट एज मेमोरी पैरामीटर। ओके, मेमोरी मस्ट बी देयर। व्हाट एल्स? सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन स्टेप शुड बी वेरी वेरी क्लियर। मतलब हर एक सॉफ्टवेयर में कुछ फेजेस को आपको फॉलो करना है, जैसे क्लिक ऑन नेक्स्ट, ऐड द और एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, do again click on next, finish the process, do installation. So that step should be proper. Okay, guidance, user should be guided with the proper step, okay, during installation. What else? The process of installation should be quick, matlab it should not take long time. As per the performance wise, definitely it should be faster. The few steps will be there to install a software application. The user should able to process that process, and whenever user complete that process, software will install in your computer machine. तो ये इंस्टॉलेशन के टाइम पे ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। द कैपेसिटी ऑफ योर मशीन, मेमोरी, द स्टेप्स आर गाइडेड और नॉट, एंड द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलेशन शुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू यूज। बट जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी होगा, ये भी चेक करना इंपॉर्टेंट है कि हाउ वेल वी आर एबल टू अनइंस्टॉल द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम द डिवाइस, फ्रॉम द मशीन। तो गाइज, इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉलेशन बोथ आर इंपॉर्टेंट टू टेस्ट। ओके, so what is installation testing? It's very simple. It is performed to check that if software has been correctly installed with its all inherent features, and that the process or product is working as per expectation. So basically it should properly install and it should work properly on the given platform. Again, it is known as implementation testing. It is done in the last phase of testing before the end user his or her first interaction with the product. इसीलिए हम इसको पहले टेस्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑन वॉट एवर इट इज डिफाइंड बाय द कस्टमर, बेस्ड ऑन दैट। तो कस्टमर डिफाइंड प्लेटफॉर्म पे जब आप एप्लीकेशन को टेस्ट करोगे कि वेदर इट इज प्रॉपरली इंस्टॉल और नॉट, दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलेशन टेस्टिंग। एंड व्हाट फीचर्स वी नीड टू फोकस ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन? देखो, it is activity based testing. The process should be proper, right? This type of testing is actually conducted in operational acceptance testing. देखो, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ये लास्ट लेवल है, राइट? अब तक हमने यूनिट टेस्टिंग कवर किया, इंटीग्रेशन वी हैव लर्न, सिस्टम टेस्टिंग वी हैव लर्न। नाउ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में 4 टाइप के एक्सेप्टेंस टेस्टिंग अवेलेबल है। यूजर एक्सेप्टेंस, ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस, उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, एंड लास्ट में आता है अल्फा बीटा टेस्ट। तो ड्यूरिंग ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग वी जनरली परफॉर्म इंस्टॉलेशन, गाइस। हमें कस्टमर प्लेटफॉर्म पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन को वेरीफाई करना होता है, वैलिडेट करना होता है। ओके, सो इट इज परफॉर्म बाय सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर्स along with the configuration manager. They identify defects, bug during this particular process and during the software installation, whatever they notice, and help deliver optimum user experience. And its process include mostly partial and full upgrade installation. अगेन द सेम थिंग, एक बार आपने इंस्टॉल किया तो ये भी टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट टाइम वेन एवर सिस्टम नीड टू बी अपग्रेड, ओके समथिंग, जैसे कि देखो, जावा का वर्जन आपने इंस्टॉल किया तो आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि सिस्टम से हमें मैसेज आता है कि लेटेस्ट वर्जन इज अवेलेबल, डू यू वांट टू इंस्टॉल दैट? तो दैट काइंड ऑफ अपग्रेड शुड बी देयर। ओके, तो वो सारे प्रोसेस को आप लोग वेरीफाई कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन टेस्टिंग। So key factors are the same. You should focus on the memory. See the scenarios. Install full version of the software. Memory space. Required disk space. Check in installation. Confirm for registry changes after installation. Yes, absolutely. System पे क्या ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद कुछ चेंजेस कर सकता है? That you have to confirm again.
and so that you are getting ना whether do you want to allow this application to make some changes, तो वो होता है registry change. Even check file install after installation, चेक करो कि सारे फाइल प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुके हैं. वी कैन डू नेगेटिव टेस्टिंग ऑल्सो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन प्रोसेस, एंड इवन अनइंस्टॉलेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू फोकस. तो सबसे पहले जब भी कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है ऑन अ कस्टमर प्लेटफॉर्म, these key scenarios we have to focus while installation. So this is what installation test. It also comes under non-functional. So what we have seen so far: recovery, configuration, compatibility. This is the next topic, installation test. Now इसमें एक और है जो कि specialized team से ही होता है. That's called security testing. Security testing, it is also called, the plan ethical hacking. So it is also referred as penetration testing. Okay, penetration testing. तो penetration testing का मतलब क्या है? जैसे कि usually what happen whenever any software we use, we are expecting that software should be secure, right? Secure का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी डेटा होगा, डेटा should not be leaked by any other person, it should not be accessed by any other person. तो मोस्टली हमें ये फोकस करना है ड्यूरिंग सिक्योरिटी टेस्टिंग, 3 की पैरामीटर. ओके, वेरी फर्स्ट, ऑथेंटिकेशन इज इंपॉर्टेंट. ओनली ऑथराइज्ड पर्सन शुड एबल टू एक्सेस योर डेटा. बट क्या वो पर्सन ऑथराइज है, वो कैसे टेस्ट करोगे? विद द हेल्प ऑफ ऑथेंटिकेशन. यहाँ पे आप चेक करोगे कि व्हाट इफ यूजर इज अ वैलिड वन एंड व्हाट इफ यूजर इज इनवैलिड वन. तो वेरी सिंपल. In authentication, if user is valid person, application should allow access of that application to that user. If that user is invalid person, application should not allow any access. That is called authentication. अब अगर कोई यूजर वैलिड है तो ये भी कंफर्म करना इंपॉर्टेंट है कि हाउ मच एक्सेस दैट यूजर कैन हैव, एंड दैट इज कॉल्ड ऑथराइजेशन. तो ऑथराइजेशन का मतलब होता है जहां पे हम फोकस करेंगे एक्सेस कंट्रोल पे, how much access we have for that particular user. So basically, in shortcut, we always test authorization only for a valid type of user. यहाँ पे invalid का काम ही नहीं है, करेक्ट? तो invalid valid है या नहीं वो आप फर्स्ट लेवल पे टेस्ट करोगे. बट इफ यूजर इज अ वैलिड, how much access user can have from that software application, that you can test. एंड सबसे लास्ट में आता है डेटा, डेटा सिक्योरिटी. मीन्स जनरली जब आप सॉफ्टवेयर को यूज करते हो, अवर मेन कंसेप्ट इज व्हाट, अवर मेन रिक्वायरमेंट इज व्हाट एवर पर्सनल इंफॉर्मेशन यू हैव स्टोर्ड और योर बैंकिंग डिटेल, क्रेडिट कार्ड डिटेल, इट शुड बी सिक्योर. तो इन जनरल डेवलपर क्या करते हैं? डेवलपर फॉलो सर्टन एल्गोरिथम just to maintain a security. What kind of algorithm, guys? It's all about data encryption and data decryption. तो डेटा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये टाइप के एल्गोरिथम्स हैं जो डेवलपर फॉलो करते हैं. इनका काम क्या है जनरली? देखो, सपोज 2 डिफरेंट सिस्टम्स दे वांट टू कम्युनिकेट, ठीक है? अब जो भी डेटा सिस्टम ए सिस्टम बी को पास करेगा, दैट शुड नॉट बी लीक बाय एनी थर्ड पार्टी. यहाँ पे है हैकर. हैकर शुड नॉट द एक्सेस योर डेटा. तो जो कम्युनिकेशन होगा इट शुड बी वेरी सिक्योर. बट ये सिक्योर कैसे होगा? अगर ए सिस्टम ने जो भी डेटा सेंड किया है, लेट्स से डेटा सेंड बाय ए इट इज हेलो, ये डेटा को कोई कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, समथिंग लाइक 01010, एंड देन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज गेट पास टू द बी सिस्टम. तो ये कन्वर्जन ऑफ ओरिजिनल डेटा इनटू कोडिंग फॉर्मेट जस्ट टू मेंटेन अ सिक्योरिटी, दैट इज कॉल्ड इंक्रिप्शन. यहाँ पे डेटा कोड में कन्वर्ट होगा, मतलब ये इंक्रिप्ट हुआ, फिर ये जाके पास होगा अदर सिस्टम पे. अदर सिस्टम पे जब ये डेटा रिसीव होगा, इनिशियली इट इज इन द कोडिंग फॉर्मेट, राइट? इस एप्लीकेशन को, मतलब इस अदर सिस्टम को, एप्लीकेशन के और ये डेटा को क्या करना होगा? इट शुड बी डिक्रिप्ट. दैट्स कॉल्ड डिक्रिप्शन. मतलब कोड से ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट करना, एंड देन सिस्टम बी रिसीव द मैसेज हेलो. तो हियर, just to maintain security for communication for any type of data, we use encryption decryption algorithm. एंड ये काम है डेवलपर्स का जब वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, जस्ट टू मेंटेन अ सिक्योरिटी. द सेम थिंग, पासवर्ड मैंने लिखा 1234, बट हमेशा आपको पासवर्ड डिस्प्ले होता है एस्ट्रिक में.
Why it is so? Or some other symbols? It is because your data is converted in the form of encrypted data. So nobody can hack it, nobody can use it. So security testing is very special. It has or it requires specialized skill. ठीक है, इसमें मेन प्रोसेस क्या है? इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज पेन टेस्टिंग. अब ये पेन टेस्टिंग का मतलब क्या है? इट इज ऑल अबाउट अ पेनिट्रेशन टेस्टिंग, पीए, penetration testing. So it is a organized, or I will say like ethical hacking process, and which is we can say define ethical hacking. मतलब पहले से प्लान होगा कि ethical hacking करना है, तो we will try to test the application in different ways, कि जहां से आप पासवर्ड को ब्रोक कर सकते हो या अदर सिक्योरिटी लेवल को सिंपल ब्रोक कर सकते हो. यू नीड टू ट्राई दैट. एंड जैसे कोई पॉइंट पे सिक्योरिटी लेवल ब्रोक होता है, तब जाके डेवलपर्स टीम दे वर्क ऑन दैट लेवल and they improve the particular security of that software. So it is a similar kind of performance, जहाँ पे performance में आप पहले bottleneck identify करोगे, issues during performance, and फिर जाके developer उस bottlenecks पे काम करेगा. Similarly security में होगा. सबसे पहले तो हम ट्राई करेंगे कि सिक्योरिटी कहाँ पे कौन से पॉइंट पे ब्रोक होगा. If it is breaking down, immediately we can work on that level and we can improve the security of the software application. तो इसीलिए एट अ फ्रेशर लेवल वी डोंट डू एनी सिक्योरिटी टेस्टिंग. बट सिक्योरिटी टेस्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेनिट्रेशन टेस्टिंग. इट्स अ पेन टेस्ट इथिकल हैकिंग प्रोसेस. So guys, three parameter: authentication, authorization, encryption, decryption. Authentication means access to valid user, denied to invalid user. Okay, तो यहाँ पे आपको authentication test करना important है. After authentication, giving access permission to only valid user to use specific services like feature functionality of the software, that is called authorization. And encryption decryption means deny to third party access to enter into the system, right? The code conversion happen between client process and server process, and then it is called encryption decryption. It is also referred as penetration testing. Ethical hacking process means authorized. See, it is a authorized simulated cyber attack on the computer system where it performs evaluate the security of the system. So in cyber security techniques, organization use identity test and highlight vulnerabilities in their security posture. तो एक ऑथराइज प्रोसेस है जहां पे हम लोग ट्राई करेंगे कि कौन से पॉइंट पे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का सिक्योरिटी ब्रेक होगा, एंड फिर जाके उस पॉइंट पे इंप्रूव किया जाएगा, राइट, सिक्योरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर. एंड देन वी कैन मेक श्योर दैट application is a secure application. So majorly people will ask you in the interview what does security testing, तो आपको बस ये आंसर देना है. It is a process where we can test authentication, access control, encryption, decryption of the software. That's it. Okay. It is also referred as penetration. Why? Because it is a authorized process, authorized ethical hacking process. जहाँ पे सेपरेट टीम होता है, वो टीम ट्राई करेगा कि कौन से वे से एप्लीकेशन ब्रेक हो सकता है. एंड इफ इट इज ब्रेकिंग, इसका मतलब सिक्योरिटी वीक है, यू नीड टू अगेन इंप्रूव द वर्क, राइट. तो उस सिक्योरिटी मतलब ये जो पूरा पॉइंट है, पूरा कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी टेस्टिंग. ट्राई टू अंडरस्टैंड. So this is all about security that you need to explain while interview. Okay, what is about security testing? 3 point: authentication, access control, and data encryption decryption. After that, we have to learn some other type of testing. So guys, non-functional में we have just covered user interface related testing, UI usability. फिर हमने learn किया performance testing, recovery testing. We have covered configuration, compatibility, installation testing, and then last, security testing. Now it is time to understand some other types of testing में एक और special category है, which is called change based testing type, and which is very special. We do retesting, we do regression testing. So change based में now it is time to learn what is retesting, what is regression testing. फिर हमें सीखना है ad hoc ways, and there are again two types under experience based, exploratory and error casing. And then we will talk about user acceptance testing, last level. तो सबसे पहले रीटेस्टिंग का मतलब होता है कंफर्मेशन टेस्टिंग. डू रिमेम्बर, अगर आप फर्स्ट टाइम कोई सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हो, राइट,
So that means you are doing what? Progression testing. So generally process remain same. You will be getting set of requirement. रिक्वायरमेंट के बेस पे सबसे पहले आप मैनुअल टेस्टिंग में टेस्ट केसेस को लिखोगे. जब आप टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करोगे देन यू विल सी सर्टेन रिजल्ट, पास होगा या फेल होगा, राइट. तो फॉर ऑल द फेल टेस्ट केसेस जनरली वी मेंटेन डिफेक्ट रिपोर्ट. ठीक है. देन दिस रिपोर्ट गोज टू द डेवलपर साइड. क्यों? बिकॉज गाइस टेस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट बट डेवलपर इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स द डिफेक्ट. तो यहाँ पे डेवलपर टीम क्या करेंगे? डिफेक्ट को फिक्स करेंगे. When they fix means what? They make some changes. वो क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर के फंक्शनैलिटी में कुछ चेंज करेंगे, लॉजिक अपडेट करेंगे. जैसे एग्जांपल 2 + 2 आई एम एक्सपेक्टिंग 4, बट सपोज मेरा सॉफ्टवेयर मुझे आंसर दे रहा है 4.0. तो डेवलपर नीड टू चेक दैट कि व्हाई आउटपुट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल डिजिट. फिर डेवलपर कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे. जैसे डेवलपर ने डिफेक्ट को फिक्स किया, इमीडिएटली हियर वी डू व्हाट? हियर वी डू कंफर्मेशन टेस्टिंग. कंफर्मेशन का मतलब होता है रीटेस्टिंग, where you will check whether software application it is properly fixed or that defect is properly fixed by the developer team. So for application, whatever defect is you found, it is getting fixed by the developer team, and it is important to check that whether defect is properly fixed by the developer team. अगर आपका confirmation testing valid है, मतलब if it is yes, then we can proceed with the next, that is called regression, guys. But अगर नहीं है तो क्या? Again we are going to ask a developer to fix the particular defect. तो ये क्या है? एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जो हम रियल टाइम में फॉलो करते हैं. तो जनरली देर आर टू टाइप्स विच इज बेस्ड ऑन चेंज ए बेस. द मीनिंग इज वेरी सिंपल, चेंज ए बेस. तो सॉफ्टवेयर में चेंजेस कब होंगे? पहला चेंज आफ्टर एवरी डिफेक्ट फिक्स सॉफ्टवेयर विल अपडेट. ओके. एंड व्हाट इज द सेकेंड चेंज? सेकेंड चेंज में बी बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट इशू. कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है कि एनवायरमेंट को चेंज करो. कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है add some new feature into software. Customer expectation is delete some feature from the software. So whenever any update occur in the software, it is what? Update in the software, right? So whenever any update occur in the software application, guys, we always go for regression testing. Do remember that. Regression बहुत special type है. When we generally follow regression testing, after making any change in the software application, we always go for regression testing. But defect fix करना ये एक ही प्रोसेस है जहां पे हम करेंगे रीटेस्टिंग. डू रिमेंबर दिस. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके. सो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रीटेस्टिंग एंड व्हाट इज रिग्रेशन. दोनों भी चेंज बेस पे होगा, बट चेंज को अंडरस्टैंड करो. अगर डेवलपर ने आपके डिफेक्ट को फिक्स किया है तो वी आर जस्ट कंफर्मिंग that whether any previous fail problem it got pass or not, right? That is what retesting. But अगर आपको सॉफ्टवेयर में कुछ भी चेंज करना है तो we go for regression. But what does regression means? See, रीटेस्टिंग प्रोसेस में जब जस्ट हम फोकस करेंगे पर्टिकुलर टेस्ट केस, गाइस. द टेस्ट केस विच वाज प्रीवियसली फेल, नाउ इट बिकम पास और नॉट, दैट वी कंफर्म. बट रिग्रेशन बहुत स्पेशल है. लाइक इन रिग्रेशन, चेंज ऑफ वन थिंग, ओके, सपोज एनवायरमेंट चेंज हुआ तो ये एक प्रोसेस का इम्पैक्ट हम कंप्लीट सॉफ्टवेयर पे टेस्ट करते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सपोज सॉफ्टवेयर कंटेन्स 3 मॉड्यूल, M1, M2, M3. प्रीवियसली सॉफ्टवेयर वर्किंग था विंडोज के लिए. अब कस्टमर ने बोला कि चलो फाइन, ये वर्क होना चाहिए एंड्रॉइड के लिए. व्हाट इज हैपनिंग? एनवायरमेंट गॉट अपडेटेड, राइट? In that case, we need to make sure that once we made any changes in the software, it should not impact on other functionality of the software.
सो हियर वी डू रिग्रेशन टेस्ट. तो रिग्रेशन का मतलब होता है साइड इफेक्ट ऑफ चेंज इन सिंपल वर्ड. आप क्या करोगे, तो साइड इफेक्ट ऑफ चेंजेस आप अपने सॉफ्टवेयर पे टेस्ट करोगे. It's in very technical way. It is a process where we can check that whether any change module has any impact on unchanged area of the software. Then it is called regression test. Okay. So now see the point. It's very interesting. What is retesting? As per the ISTQB, it is a confirmation testing. It ensures that closure of defect is done successfully. So execute test case for the first time. That's called progression. बट रीटेस्टिंग का मतलब होता है री एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल फेल्ड टेस्ट केसेस टू चेक फिक्सिंग डन बाय डेवलपमेंट टीम इज प्रॉपरली फिक्स्ड और नॉट. तो आपका मेन इंटेंशन होता है फेल टेस्ट केस को पास करना और चेक करना कि whether the problem get resolved by the developer or not. So it is called retesting. Process of re-executing fail a test case just to confirm whether it is pass or not. That is called retesting. तो इन सिंपल वर्ड आप आंसर दे सकते हो. आफ्टर एवरी डिफेक्ट फिक्स टेस्टर नीड टू कंफर्म दैट वेदर डिफेक्ट इज प्रॉपरली फिक्स्ड बाय डेवलपर और नॉट, एंड देन इट इज कॉल्ड रीटेस्टिंग प्रोसेस. इजी. बट व्हाट डज रिग्रेशन मींस? इट्स वेरी स्पेशल. रिग्रेशन में हम फेल टेस्ट केस को टेस्ट नहीं करेंगे. रिग्रेशन में साइड इफेक्ट ऑफ चेंज आपको टेस्ट करना है प्रीवियस फंक्शनैलिटी. मतलब प्रीवियस फंक्शनैलिटी अगर पहले से पास है, so after making change, you need to make sure that still my application is a stable only, pass only. मतलब यहाँ पे आप टेस्ट करते हो previous pass functionality after making change, still it is pass or not. Retesting में fail to pass, but यहाँ पे होता है pass to pass. मतलब already पहले कुछ working है, but जैसे change होगा मुझे पहले वाला functionality फिर से validate करना है कि whether it is still working. That is regression. So regression testing means it done to check whether any change component has affected on unchanged functionality or component functionality, ensuring that bug is fixed without any side effect. That is called regression testing. Re-executing of selected test case on a modified build to estimate completeness, correctness of the application without any ripple effect due to bug fix. मतलब कोई भी चेंजेस के अकॉर्डिंग आपके सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस या अपडेट नहीं होना चाहिए या उसका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, वो हम टेस्ट करेंगे ड्यूरिंग रिग्रेशन. तो प्रीवियस पास फंक्शनैलिटी वी आर मेकिंग श्योर दैट स्टिल इट इज पास आफ्टर मेकिंग चेंज. एंड यू नो व्हाट गाइस, एक और सिनेरियो में आपको बताना चाहूंगी कि सोचो आपका मेन काम है कि टेस्ट केस राइटिंग करना, राइट? तो वी हैव सर्टेन रिक्वायरमेंट. लेट मी टेक सॉफ्टवेयर विथ 3 मॉड्यूल. ठीक है, M1, M2, M3. It's like registration, login and search. Okay? हमने क्या किया, तीनों मॉड्यूल के लिए टेस्ट केस को प्रिपेयर किया. तो कंसीडर आई हैव रिटर्न entire test cases. Those are 100. How many test cases I have mentioned? 100 test cases. Okay. After test case design, हमें करना होता है एग्जीक्यूशन. तो हमने ऑल 100 को रन किया एंड व्हाट वी नोटिस, माय 99 टेस्ट गॉट पास बट 1 टेस्ट गॉट फेल. तो फाइन, एक ही डिफेक्ट मिला, बट जो एक डिफेक्ट है उसको रिपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है. सो इट इज कॉल्ड डिफेक्ट लॉग और डिफेक्ट रिपोर्ट. मैंने लॉग किया, एक ही मेरे पास फेल्यूर है. ओके फाइन, वी विल आस्क डेवलपर टू फिक्स इट. डेवलपर ने फिक्स किया, बट जैसे डेवलपर ने फिक्स किया वी हैव टू गो फॉर रीटेस्टिंग. ठीक है, रीटेस्टिंग कंप्लीट हुआ. नाउ इट इज नोटिस दैट कि जो पहले वाला प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो चुका है, तो यू आर गेटिंग पास रिजल्ट इन रीटेस्टिंग. बट बिकॉज ऑफ एनी चेंज, जैसे कि ये डिफेक्ट जो मुझे मिला था वो लॉगिन में था. ठीक है, लॉगिन का रिलेशन है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ सर्च के पास. तो लॉगिन में जो भी चेंजेस होते हैं, दो चेंजेस शुड नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन अदर फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर. बट ये कंफर्म करना होगा, राइट, कि आफ्टर मेकिंग चेंज इन द लॉगिन, is there any impact available in the software, is it affected or not? And you know, for that we go for regression. तो बताओ कि रिग्रेशन में क्या टेस्ट करोगे? The change has any impact on registration or any impact on search. इसका मतलब मुझे यहाँ पे फिर से एक बार मेरे प्रीवियस फंक्शनैलिटी को रीरन करना होगा. All the 99 test cases I will be re-executing again.
just to make sure that there should not be any impact. अब सोचो कि अगर ये पूरा प्रोसेस आपने पहले से मैन्युअली किया है, you have spent some time to prepare a test cases, you have spent some time to execute test cases, login आपने किया, right? डिफेक्ट लॉग कंप्लीट हो चुका है, डिफेक्ट फिक्स हो चुका है. We did this entire process manually, but again it is a time to rerun all the previous past functionality. तो हाउ इट इज पॉसिबल? अगर आप फिर से मैन्युअली करोगे तो आपका पूरा का पूरा टाइम वेस्ट होगा. एंड इसीलिए गाइस, रिग्रेशन, जहां पे आप पहले ही पास वाले फंक्शनलिटी को फिर से री एग्जीक्यूट करते हो एंड चेक करते हो कि वेदर इट इज इम्पैक्टेड. तो जैसे सॉफ्टवेयर में कुछ भी चेंज होगा, हमें पहले फोकस करना है कि जो प्रीवियस बिल्ड है सॉफ्टवेयर का, इट शुड बी स्टेबल. एंड यू नो, बिकॉज ऑफ दैट, रिग्रेशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर फॉर ऑटोमेशन टेस्टिंग. यहाँ पे नीड है ऑटोमेशन की. अगर आप फिर से मैन्युअली करोगे, प्रोसेस रिमेन सेम. मैन्युअली एग्जीक्यूट टेस्ट केस एंड अगेन चेक इट वेदर इट इज इम्पैक्टेड. अगर टुमारो कुछ भी सॉफ्टवेयर में चेंज होगा, फिर से मैन्युअली करना पड़ेगा. तो हाउ मेनी टाइम यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस प्रोसेस? बेटर एक ही बार ऑटोमेशन का स्क्रिप्ट प्रिपेयर करो फॉर एवरी टेस्ट केसेस. टुमारो इफ एनी चेंजेस ऑकर इन द सॉफ्टवेयर, आपको मैन्युअली कुछ करना नहीं है, आप यहाँ पे ऑटोमेशन में बस रन करोगे. ऑल द टेस्ट सूट मतलब कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस. तो ऑल द टेस्ट सूट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट एग्जीक्यूशन एंड यू विल गेट टू नो दैट कौन सा पास है, कौन सा फेल है. अगर फेल है तो फिर से डेवलपर से पूछेंगे फिक्स करो, राइट? एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन कंटिन्यू अवर प्रोसेस. तो वन मोर थिंग टू रिमेंबर, regression testing is the most common scenario for automation testing. Without that, we'll be not able to conduct regression. तो ऑटोमेशन में ही आप रिग्रेशन करते हो. मैन्युअली जनरली वी डोंट फॉलो रिग्रेशन टेस्टिंग, ओके, बिकॉज इट इज अ रिपीटेड प्रोसेस. सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड चेंज बेस्ड टेस्टिंग टाइप, रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग. अब एक और इंटरेस्टिंग है, एडहॉक टेस्टिंग. तो गाइज, एडहॉक का मतलब होता है टेम्पररी. एक्चुअली एवरी टाइम व्हेन वी टेस्ट दिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, एक प्लान प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं. तो वी डू प्लान टेस्ट, ओके, बट समवेयर प्लान भी फेल हो सकता है ना, बिकॉज ऑफ सम अदर इश्यूज. एग्जाम्पल, आपने पहले कुछ डिसाइड किया था कि हमारे पास 10 टीम मेंबर्स है, 10 रिसोर्सेस है, बट सडनली रिसोर्स गॉट अपडेटेड. अब हमारे पास कम रिसोर्स है, पहले 10 थे लेकिन अब कम है. तो फिर भी आपको टास्क को कंप्लीट करना है. सपोज यू डोंट हैव अ प्रॉपर इनफ मटेरियल फॉर अ टेस्टिंग, ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशन, तो भी टेस्टिंग को कंटिन्यू करना है. somewhere we have a time pressure, within a short time frame we need to do lot of things, but फिर भी टेस्टिंग तो करना है. एंड इन दैट केस वी कैन गो विद एडहॉक टेस्टिंग. तो एडहॉक टेस्टिंग का मतलब होता है इट इज अ कंप्लीटली इनफॉर्मल वे ऑफ टेस्टिंग which is done randomly, without any plan or without any strategy, or with the intention to same break the application or break in the system or software. तो इंटेंशन सेम ही है कि एप्लीकेशन से डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करो, बट यूजुअली वी डू प्लान वे, राइट? एडहॉक टेस्टिंग हमेशा नहीं करेंगे, बट वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड वी ऑलवेज पास द इनपुट रैंडमली एंड वी टेस्ट द एप्लीकेशन रिस्पॉन्स. दैट इज कॉल्ड एडहॉक टेस्टिंग. इट्स इनफॉर्मल वे. तो यूजुअली इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी टेस्ट स्ट्रेटेजी, एनी डॉक्यूमेंटेशन और एनी प्लान. टू रिमेंबर दैट ये कोई भी स्ट्रैटेजी या प्लान के बेस पे नहीं होगा, ये रैंडम होगा, टेम्पररी काइंड ऑफ टेस्टिंग होगा, जहां पे आप रैंडमली इनपुट दोगे एंड रैंडमली आउटपुट को कैप्चर करोगे. एंड सो इट इज कॉल्ड एडहॉक टेस्टिंग. बट इसके मल्टीपल टाइप्स हैं. जैसे कि एडहॉक में सबसे पहला कॉमन टाइप है मंकी टेस्टिंग, विच इज एक्चुअली कॉल्ड रैंडम टेस्ट. yes, name is monkey, so there are monkey, chimpanzee, gorilla testing, there are many types available. बट एग्जैक्टली ये क्या है? तो इट्स लाइक अ स्ट्रैटेजी कि जो मंकी फॉलो करता है, राइट? कि जनरली मंकी यूज टू जंप फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री, बट जब वो जंप करते हैं तो वो सोचते नहीं है कि कहाँ से कहाँ पे जंप लगाना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मीन्स विदाउट थिंकिंग द वे विच वे टू बी फॉलो, दे जस्ट स्टार्टेड और दे जस्ट जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री. तो दे आर डूइंग दैट टास्क रैंडमली. तो सेम कॉन्सेप्ट है. अगर आपके पास कम टाइम होगा तो आप क्या करो, रैंडम टेस्टिंग करके टास्क को कंप्लीट करो. तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड मंकी टेस्टिंग. सी, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम
The testing team can concentrate on only the main activities of the software build for a testing. And this style of testing is called monkey, chimpanzee or gorilla testing. मतलब आपके पास कम टाइम है, सब कुछ टेस्ट नहीं कर पाओगे, बट रैंडम मतलब क्या टेस्ट करोगे, तो क्रिटिकल फंक्शनैलिटी, फोकस ऑन द हाई प्रायोरिटी हाई क्रिटिकल फंक्शनैलिटी, पहले उसको कवर करो एंड देन अदर एक्टिविटीज को टेस्ट करो रैंडम. देन दैट प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग इज कॉल्ड मंकी टेस्टिंग. अब देखो, दिस इज अगेन वेरी कॉमन टाइप जो आप मोबाइल एप्लीकेशन में भी करते हो. ओके, तो विल बी लर्निंग इट ड्यूरिंग एपीएम. So this testing type is timely or it's mainly performed by at the time of unit testing. Mostly this technique done automatically where the tester tests the application by providing complete random input to ensure that stable is able to withstand any crashes as well as check its behavior. मतलब टेबल आपका जो भी एप्लीकेशन है, इट शुड बी स्टेबल. withstand means it is just stable. Okay, so application must be stable or it should be from any crashes, from any problem, it should simply recover. Okay, so we can test that particular behavior of the software. तो एक सिंपल वर्ड, मंकी टेस्टिंग का मतलब होता है रैंडम वे ऑफ टेस्टिंग, जहां पे आप कॉन्सेंट्रेट करोगे मेन फीचर्स को, एंड अदर फीचर ऑफ द एप्लीकेशन वी डू रैंडमली टेस्ट एंड वी कंप्लीट द प्रोसेस. एंड दिस स्टाइल ऑफ टेस्टिंग इज कॉल्ड मंकी टेस्टिंग. डू रिमेंबर दिस पॉइंट. इसमें एक और है बडी टेस्टिंग, पेयर टेस्टिंग, एक्सप्लोरेटरी, एरर गेसिंग, ऑल दीज आर मंकी टेस्ट, आई मीन एडहॉक टेस्टिंग टाइप होंगे. अब बडी का मतलब क्या होता है, ग्रुप. पेयर इज अगेन ग्रुप, बट बडी एंड पेयर टेस्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है. बडी टेस्टिंग में जनरली वेर द योर मैनेजर दे विल ग्रुप टुगेदर डेवलपर एंड टेस्टर, यू नो, एज अ बडी. सिंपल मतलब इट्स वेरी कॉमन इन अजाइल अगेन. तो एजाइल में भी जो इनफॉर्मल वे ऑफ सिंपल आपका रिक्वायरमेंट होता है, रिव्यू होता है, दैट इज व्हाट बडी और पेयर टेस्टिंग होगी. तो एज द नेम सजेस्ट, in the type of this testing there are two member, okay, like tester and developer chosen to work on the same module, and this follows the feature to be viewed in a broader scope of both party. मतलब डेवलपर एंड टेस्टर का एक ग्रुप किया जाएगा एंड देन दे फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर मॉड्यूल, एंड देन दैट टेस्टिंग इज कॉल्ड बडी टेस्टिंग. तो जनरली यहाँ पे मेन कंसेप्ट क्या है कि अलग अलग व्यूज होता है ना टेस्टिंग के टाइम पे. डेवलपर थिंकिंग पॉइंट, डेवलपर ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट, टेस्टर ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट, बट जब दोनों मिलके काम करेंगे तो दे माइट गेट अ न्यू थिंग्स और न्यू डिफेक्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर. So developer gains the perspective of all the tests run by the tester, and tester to gets insight of the inherent design, which helps them to avoid designing invalid scenario as well to prevent the defect. So basically guys, developer tester के experience के base पे, whatever they have, their understanding, their own way of work, based on that management groups tester and developer together, and that testing process is called buddy testing. Similarly, pair testing का मतलब है it is similar to buddy, but two tester works together on a same module to set up share between them. And the idea behind that two tester brainstorms the idea, method and detect more defect to get best result. तो यहाँ पे pairing मतलब within a team. In general, it is a within a team. जो भी आपका टेस्टिंग का टीम है, within that you will pair with your colleague, and फिर दोनों आप मिलके क्या करोगे, सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल को टेस्ट करोगे. Then it is called pair test. तो एडहॉक में मंकी टेस्टिंग, बडी टेस्टिंग, पेयर टेस्टिंग. And there is a one more which is called exploratory testing. But do remember, exploratory and error guessing, it comes under experience based testing technique. मतलब इन जनरल हम क्या करते हैं, प्लान टेस्टिंग फॉलो करते हैं, सडन प्रॉब्लम्स आते हैं तो एडहॉक वे को फॉलो करते हैं, राइट. तो एक्सप्लोरेटरी भी एक एडहॉक टेस्टिंग है, बट एक्सप्लोरेटरी व्हाई इट इज सो स्पेशल, बिकॉज ये एक्सपीरियंस बेस पे होता है. मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस टीम विल हेल्प यू, दे विल गाइड यू, दे विल हेल्प यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एरर प्रोन एरिया. तो एक्सप्लोरेटरी का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि इफ यू डोंट हैव इनफ डॉक्यूमेंटेशन अबाउट योर एप्लीकेशन, अबाउट योर प्रोजेक्ट, तो फिर आप क्या करोगे, टास्क को तो कंप्लीट करना है, राइट. तो वी कैन एक्सप्लोर द थिंग्स, मतलब आप डिजाइन को एक्सप्लोर करो. इवन यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ गूगल, इंटरनेट, कोई सिमिलर प्रोजेक्ट अगर कंपनी में ऑलरेडी हो चुका है तो उसको रेफर करो, एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद द टेस्टिंग प्रोसेस. तो एक्सपीरियंस बेस्ड
like based on your experience only you are able to handle some situation, and that is called experience or exploratory testing. So guys, exploratory testing plays important role in agile. It is simulations approach where the tester learn about system, perform test design and write test cases. ठीक है, तो आपका मेन काम यहाँ पे क्या होता है कि वॉट एवर यू लर्न बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, जो सब कुछ हम यहाँ पे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे एंड वी राइट अ टेस्ट केसेस. सो इट मे बी समटाइम्स कंबाइंड विद अदर एक्सपीरियंस बेस्ड टेस्टिंग, सच एज इसमें बहुत सारे टाइप्स भी है, एनालिटिकल रिस्क बेस्ड टेस्टिंग, अगेन रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग, सम मॉडल बेस्ड टेस्टिंग और रिग्रेशन एवर्स टेस्टिंग. बट ठीक है, दिस पॉइंट आई हैव एडेड एज पर द आईएसटीक्यूबी, बट दैट्स ओके. आपको बस ये अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी. So guys, this test is a informal testing where the skill tester perform the investigation of the bug or error. So due to lack of proper documentation, software being built, the test engineer depends on the past experience. They discuss with other, browse internet or operate similar project, and sometimes they can contact to customer side people. Okay, and this style of testing is called exploratory testing. मतलब अगर कुछ नहीं पता तो वहां पे हम क्या करेंगे, वी विल रेफर समथिंग प्रीवियस सिमिलर वर्क. ओके, आइदर आप इंटरनेट का यूज करो, बट थिंग्स यू नीड टू एक्सप्लोर, एप्लीकेशन यू नीड टू एक्सप्लोर मोर, एंड देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर टेस्ट केसेस. इसमें एक और टाइप है एरर गेसिंग, बट एक्चुअल एरर गेसिंग कम्स अंडर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में लर्न करेंगे. बट एडहॉक टेस्टिंग में दिस बोथ कम्स, exploratory bhi and error guessing bhi. Why it is so? Because error guessing, it is again based on experience people only, we can simple follow that. तो आप every time नहीं करोगे, whenever it is required we can go for this type of test, but people will ask you questions in the interview, so that you need to prepare. So one more time, ad hoc testing, it's not a planned testing, it is a completely informal way of testing. इसमें चार टाइप अपने स्टडी किए हैं, मंकी टेस्टिंग, बडी, पेयर एंड देन वी हैव एक्सप्लोरेट. मंकी टेस्टिंग का मतलब होता है रैंडम टेस्टिंग. तो जनरली लाइक अ मंकी, व्हाट वी डू, we just concentrate on a high priority or critical area and the features of the other application that we can test randomly. So it is called monkey testing. बड़ी टेस्टिंग में ग्रुप होता है, डेवलपर टेस्टर एक साथ काम करेंगे एंड डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे. पेयरिंग में आपके टीम के साथ ही, मतलब आपके कलीग्स के साथ ही आपका ग्रुप किया जाएगा. देन टू टेस्टर दे वर्क टुगेदर ऑन अ सेम फंक्शनैलिटी, दे विल ट्राई टू आइडेंटिफाई सम डिफेक्ट. बट समटाइम्स कंपनी में ये भी होता है कि यू नीड हेल्प ऑफ अ एक्सपीरियंस पीपल टू गेट द डिफेक्ट, एंड फॉर दैट वी डू एक्सप्लोरेटरी एंड एरर गेस. बट ये दोनों भी टाइप आते हैं एडहॉक टेस्टिंग के अंदर. तो एडहॉक टेस्टिंग, इट इज व्हाट, where there are different types, and it is all about a informal way of testing. But experience based अगर किसी ने पूछा, as per the ISTQB there are two types, exploratory and error guessing. Okay, so today we have completed non-functional, change based testing type, that is retesting, regression, and the ad hoc testing type, जहाँ पे हमने 4 types को cover किया. Next topic is user acceptance testing, but I will be taking this topic in the next session. As I mentioned, today only 1 hour session I will be taking, and remaining topic will be continue again tomorrow, but timing remains same, 9 a.m. to 10:30 a.m. that I will be taking tomorrow again. तो कल हमारा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कंप्लीट होगा, अल्फा बीटा एंड ऑल. तो ये मॉड्यूल हमारा कंप्लीट होगा एंड विल बी स्टार्टिंग विद ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. तो गाइज इफ यू जस्ट वांट टू सी दैट, एज आई मेंशन कि इस पूरे वीक में एंड नेक्स्ट वीक में विल बी कंप्लीटिंग अवर मैनुअल टेस्टिंग एंड विल बी स्टार्टिंग विद अवर ऑटोमेशन पार्ट. So only 1 week more, we need to understand the manual testing process. Let me help you with the topic. See, हमने validation आज mostly कल complete होगा, and tomorrow we'll be starting with the method. फिर हमें सीखना है quality planning and test cases and defect management. तो test case writing also we have completed. But then what are the key points to focus? That point we are going to discuss here. जैसे कि good practices for test case writing. Okay. And then I will be giving you project also based on the manual testing only. Do remember that. तो आपका practice भी होगा. And even during this module, I will be covering a test rail
टेस्टरेल में आप सीखोगे कि टेस्ट केस मैनेजमेंट आप सिंपल इसमें कैसे करोगे, या हाँ, तो टेस्ट केस मैनेजमेंट आप टूल में कैसे करोगे वो भी सीखना है, तो आई विल बी टेकिंग हियर टेस्टरेल 2। तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक में आपका मैनुअल टेस्टिंग कंप्लीट होगा एज पर द शेड्यूल, एंड देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट मे बी फ्रॉम 15th ऑफ अप्रैल विल बी प्लानिंग टू स्टार्ट विद जावा प्रोग्रामिंग। सबसे पहले प्रोग्रामिंग पार्ट कवर करेंगे एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट सेलेनियम पार्ट। तो फ्रॉम 15th अप्रैल विल बी स्टार्टिंग विद ऑटोमेशन। ओके, but do prepare, do practice every day. As I mentioned, I will be planning to take your mock interviews too. तो अगर आप ready हो तो after 15 on that 20th April Saturday I will be taking your mock interviews. तो आपको एक week भी मिल जाएगा preparation के लिए for manual test. Let's go for it only for the preparation purpose. ठीक है? Okay, yes. Yeah, Nirmala will be covering Jira and all everything. Yes. Because defect management आपको सीखना है Jira tool से. So that part I will be covering. Okay, Govind, just call me. Yeah, fine. Yes, Okay, ma'am. everyone. Is this point clear to all? तो प्रिपरेशन करो। आज मेरा एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं जल्दी सेशन मैंने अरेंज किया था। एंड टुमारो वी हैव अ सेम टाइमिंग 9 AM to 10:30 AM. Okay, so that's all for the day. Thank you. Bye bye. Take care, and we will continue again tomorrow. Bye, ma'am. Take care. Yeah, bye everyone.